It is okay? Yes, sir. Now Yes. it's fine. Okay, Thank thank you. you. Okay. So, I want to discuss course description. So this is the introductory course in statistics designed to provide a student with the basic concept of data analysis and statistical computing. You will learn several courses of statistics. This is the first course, Introduction to Statistics. The second course, it will be Statistical Inference and some other courses for EM student. So, this course basically aims to introduce the principle of statistical analysis and methods of data collection and presentation and summarization of qualitative and quantitative data. So, this course describes the fundamental concept of descriptive statistics and inferential statistics, types of data, sources of data, presentation of data through various tables and charts, and summarization of data using various descriptive measures. This course also discusses the principle of probability theory and random variables. Finally, we will discuss the standard probability distributions, namely binomial distributions and Poisson distribution and normal distributions. So this is the course description. So we will try to cover these topics. Okay. As far as the objective of this course is concerned, this course aims to enhance student skills in analyzing quantitative and qualitative data. At the end of this course, uh, you will be able to determine their understanding of descriptive statistics by practical applications of qualitative and quantitative uh, reasoning. Okay, and this course you will also able to apply various descriptive statistics technique for analyzing qualitative and quantitative data. And you will learn how to present and summarize data through various table and graphs. The last but most important thing in this semester or in this course, you will also learn how to use statistical software for analyzing quantitative and qualitative data. There are various types of statistical software. I will use SPSS, uh, SPSS software for implementing this course. There are some other software, for example, Minitab, Statistica, and SAS, and there is another software which is also very powerful software which is called Capital R. So, various software, but in this semester, we will learn only SPSS for analyzing qualitative and quantitative data. As for textbooks is concerned, I will use, let's see, I will use this uh, Statistics for Business and Economics, 11th edition by Anderson. So, I have already uploaded this textbook on LMS. Okay. So let's, and there are some other reference book, for example, Walpole. This book is also available in the market, and Newbold. Anyway, so there are so many other books. So, but mainly I will use Statistics for Business and Economics, 11th edition by Anderson as textbook. Okay. Let's, let's begin chapter number 1. Just a minute.
Are you, I have changed my slides. Are you, okay? Yes. Hello. Yes, sir, we can hear Yes, you. sir. And I have changed my slide. That is chapter number 1. Yes, sir, we can see. Okay. Yes, sir. So Yes, this sir, will we be, can see you. so now, Okay, sir. okay, now we are moving towards chapter number 1. Chapter number 1 is basically, it is descriptive chapter. Formal, I mean, statistical analysis will start from chapter number 2. Okay. The chapter number 1 basically it will give you the background of data and statistics. Okay. So we will cover this topic in chapter number 1, statistics. We will see what is statistics, and then we'll see the applications of statistics in business and economics. Then we'll see what do we mean by data, and what are the sources of data. Then what is descriptive statistics? How do we define statistical inference? What is the meaning of statistical inference? Then there are some computer and statistical analysis. There are some software. What is the meaning of data mining? And then some ethical guidance for statistical practice. Okay. So we will cover this topic in chapter number 1. So basically we will focus on philosophy of statistics. Okay. Let's see what is statistics. The term statistics basically refers to numerical facts such as average, median, percentile, to understand a variety of business and economics. Okay. For example, if I measure the height of each student of a class, say, then I will gather some data. Then the question is, what is the average value of the height of each student? So this is called mean or average value. Similarly, what will be the median value? What is the, mode? So this type of calculations, basically they are called statistics. Okay. The term statistics basically, they are the measurement of average, median, percentile, quartile. These type of measurements are known as statistics. However, the statistics, it is a subject. As for in the broader sense, statistics is defined as the art and science of collecting, analyzing, presenting, and interpreting data. When we say statistics basically, it is art and science of collecting data, analyzing and presenting and interpreting data. So basically, statistics deal with data. There are two types of data. One is called deterministic data, another is called random data. For example, if the future behavior of any data can be forecasted, then it is called deterministic data. For example, if we invest money in a bank, we can forecast what will the future value. If suppose I invest 100,000 rupees in a bank, so if the bank is paying 10% interest, then after 1 year, the value of the money, it will be 110,000. Similarly, in the second year, it becomes 121,000. Using, we can compute the future value of my investment using compound interest formula, a1 plus I to the power n. So this data will be generated by computing the future value of my investment. It is random, it is deterministic data. Okay, just deterministic data. However, if I toss a coin, I don't know what will be the outcome of the experiment. Okay, maybe I will get head and tail. So if I will toss
coin several times. I don't know what will be the what will be the future, what will be the outcomes. Similarly, if you invest money in the stock market, you don't know what will be the value of your money tomorrow or after day after tomorrow. So if you invest money, it may be increase or it may be decrease after some few days. So the investment of money in the stock market uh, is random. The value of the money which is invested in the stock market is random data. Okay, so the main purpose of statistics is main purpose of statistics is to analyze random data. However, we can use statistics for analyzing deterministic data, but the purpose of statistics to deal with the randomness. Okay, is the purpose of statistics is to deal with the random data. Okay, so this is the basic idea of statistics. There are different types of statistics, descriptive statistics, inferential statistics, univariate statistics, multivariate statistics, stochastic processes. So anyway, there are many branches of statistics. So however, here we will focus on descriptive statistics. Okay. Chapter number 1 begins with some illustration of application of statistics in business and economics. Yes, Nima. In section 1.2, we will define the term data. And in section number 1.3, we will discuss the sources of data, how data can be obtained from the existing sources. Then we will discuss some internet, important role of internet plays in obtaining data. So basically, these are the topics. Let's begin section number 1.1. That is application of statistics in business and economics. Accounting is very important thing. Audit report is very important. Every organization actually has internal auditors, as well as there are some external auditors. The job of the auditors, auditors basically, evaluate the receipts of the expenditure, receipts of, okay. So, the auditor actually check each receipts and then issue an audit report. So each company actually make in annual audit report. For these cases, audit firms wants to determine the amount of accounts receivable on a client's balance sheet. Okay, the purpose is this balance sheet represent the actual amount of accounts receivable. So therefore, the large number of individual accounts receivable makes reviewing and validating every account too large, consuming, and expensive. There are, I mean, several, sometimes, there are millions of receipts. It is not easy to check each and every receipts. So what auditors actually do, as a common practice in such situation, the audit staff selects a subset of accounts, subset of receipt called a sample. After reviewing, after checking the accuracy of the sample accounts, after checking the accuracy of, say, sampled receipts, the auditor draw and conclusion whether the accounts receipt are, correct or not, or acceptable or not. So this type process, this process is called sampling process. So each and every auditor has to follow this sampling procedure. Sampling procedure is basically, it is a statistical inference. From a sample, you draw the conclusion for the populations. Okay, so even in the accounting, statistical procedure is used for audit report. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. This is Yes, sir.
This is first application event. Auditors uses sampling procedure for audit report. Okay. Let's see the applications of economics. Application of statistics in economics. Basically, economists use statistical inference information in making forecast about the future of the economy. For example, what will be the inflation rate, or what is the inflation rate. In order to calculate inflation rate, the statistician they basically use price index, unemployment rate, and manufacturing capacity utilizations. Nowadays, economics actually becomes mathematics. Econometry. It is the combination of mathematics and economics. Economics is basically use a statistical tool for computing various calculation, as I have mentioned, inflation, how to calculate the inflation rate. Similarly, poverty. The unemployment rate, and there are different price, how to calculate the price index, unemployment rate, manufacturing capacity utilization. So economics basically also deals with the statistical analysis. Okay, let's see application of statistics in finance. So basically, I have a question. Yes. Sir, what is the difference between accounting and economics, or they are both related? How can we differentiate both of them? Economics has large canvas. Okay, accounting is a particular, accounting deal with the expenditure of a company. And economics is basically see, what will be, how they say they analyze about the financial issues, and it has more jobs. Okay, and where the company should invest money. And economics, it is a very broad subject. Economics is, macroeconomics, microeconomics. Auditor actually deals with the, the receipts, expenditures. However, when we talk about the financial engineering, that is, it is also very large field. Accountings, anyway, you can say economics is, their public economics, and it has broad canvas. Okay. Anyway, so sir, we can say that accounting is just about accounts, and while economics is about financial condition and when to invest. But when you study, you do not remain only on the audit report and so forth. Sometimes you become the financial analyst. Okay, then if you want to become good, the expert of the accounting, you must learn also economics. You must know mathematics. Okay, you must know statistics. Nowadays, we have a collection of subjects. Okay, if you want to become a good professionalist, you must learn mathematics, statistics, economics, and accounting. Then you will become useful. Okay. Yes, sir. For example, when we talk the actuarial science, it is a combination of all these subjects. Actuarial science, economics, mathematics. So they all deal with finance of the, okay, stock market. Who look after the stock market? The actuarial sciences, actuarial scientists. Okay. Similarly, the financial analyst, they guides investors. Okay. So anyway, you can't separate each and every subject. Okay. Nowadays, there is a combination of each subject uses another subject. Even nowadays you will wonder, even biological scientists use statistics. That is called biostatistics. Even yes, medical doctors, they use statistics for research purpose. That is called genetic engineering. Yes, sir. Genetic engineering deal with biological problem and uses math, stats, and engineering. Okay. So nowadays, each and there is a combination of all subjects. Even if you want to become good bioengineer, subject of genetics, then you may have good
I mean, knowledge of mathematics and statistics. Okay. Yes, sir, I got it. Okay. If you know, there is a Nobel laureate, Professor Dr. Sen of India, who received, you know, Nobel Prize in economics. I have seen his book on, you know, economics. When I when I gone through his books, I saw this is it is a book of mathematics. Okay. So you know, he was awarded Nobel Prize. He shown that the economics, yeah, the poverty of world poverty is artificial. You know, artificial means, you know, some major companies, they hold the economics of the world, and they play with the, you know, uh, so therefore even poverty is an artificial phenomena. You know, global war. What is global warming? It is man-made. Likewise, the poverty is also man-made. Are you getting the point? So when you will read Yes, a sir. Professor San book, although book is related to economics, but it is mathematics. You know, Dr. Hafiz Pasha, he is a great economist. His master degree is MS in mathematics, but his PhD is in economics. He's a world authority of you know, on Pakistan economics. You know, so but he's a good mathematician. So you know, if you want to become even financial analyst, even, you know, economist, so you must have computational skills. Each subject requires computational skills. Computational skills is how to deal with data. Okay, Yes, sir. is it? Sir, So what is you the book of the Indian author? Dr. Sen, you can search for book of Dr. Sen, who he was awarded Nobel Prize. Okay. Okay, sir, thank you. Some, you know, some of my colleagues from Department of Economics, he showed me. I don't have any copy of that book. Okay. Okay, sir, Anyway, thanks. so finance, even finance department, you know, financial advisor use price earning ratios and dividends to guide their investment advice. Okay. For example, you know, just a minute. For for example, there are two. Okay. For example, there are two companies who deal. Wait, just a minute. I am receiving some noise. Okay. For example, suppose there are two companies, Dow Jones, and there is another company, Altria. You know, stock market is each company actually, you know, uh, invest. They issue. They, you know, they sell shares in the stock market, and you know, some investor buy shares. Okay, so each company actually, you know, sells shares of the company in the stock market. After, you know, 1 year, the company actually gives dividend. For example, if I purchase, suppose, 100 share of any company, if company announces that company will give me 5% dividend, it means now my share will become 105. Originally, I So what had are dividends? dividend. What are dividends? Yes, this I am illustrating. You know, the you can say the bonus. You know, I have 100 shares, okay, of any company. If the company announce that company will give 5% dividend, okay, so then my share will increase to Dividends are the same. G. Bonus and dividends are the Yeah, same. you can, I mean, dividend, the company actually announces 5% dividend, or you can say the bonus, okay. But Sir, please explain what are shares as well. you know, shares, They're you the know, return on your no, shares. shares, you know, They're the return on your investment. let's I see. can't When hear you. you know, when a company requires, I mean, investment money, then they launch their share in the stock market. So, you know, there is a particular price of each share. For example, if you will see the share price of Shell, share price of National Bank, so this is called share. You are sharing in the investment with the company, that is called share. Okay, share means you can you put
put your money in any companies. So you are sharing. I have a question. Yes. Sir, then how the how the investors get benefit from buying shares from the company? yes, मैंने जब कंपनी जब उसको फायदा होगा तो वो शेयर होल्डर को भी अपने प्रॉफिट को वो करती है, पास ऑन करती है, इसी को हम डिविडेंड कहते हैं. Are you getting the point? शेयर्स क्या हुआ, कंपनी को पैसे चाहिए, रकम चाहिए, सही है. जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब वो करती है उसको हम बॉन्ड कहते हैं. जो गवर्नमेंट करती है ना वो बॉन्ड होता है. लेकिन शेयर बॉन्ड तो ये होता है कि फिक्स होता है कि आप 10 साल के बाद आपने इतनी इन्वेस्ट की तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वो फिक्स पीरियड है. लेकिन शेयर्स क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के आपने 100 शेयर्स परचेज कर लिया, सही है. तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट डाल दी. हम एक तरह से ओनर बन गए. जी, हम ओनर बन गए अगर हम किसी कंपनी के. कैसे यही होता है कि अगर आप इफ यू हैव 51% शेयर, यू आर द यू हैव, कंपनी आपकी हो जाएगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर तो अगर हम शेयर्स परचेज करते हैं इसका मतलब है कि हमने उस कंपनी को बाय कर लिया और हमारा मतलब कुछ हक है. आपका कितने % शेयर, ये इंपॉर्टेंट होता है ना. जैसे एक ओनर जो अगर जैसे मेजर ओनर जो होता है वो जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शेयर लॉन्च करती है तो वो 100% शेयर नहीं लॉन्च कर देगी. वो क्या होगा, हर कंपनी की आपको पता है कि वैल्यू होती है, एसेट्स वैल्यू होती है, कंपनी उसके लिहाज से लॉन्च करती है. तो आप कंपनी मिसाल के तौर पे क्या होता है 40% शेयर मार्केट में रखती है, 60% अपने पास रखती है. तो जिसका ज्यादा शेयर होगा उसका ज्यादा वो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही होती है. सही है सर, आई गॉट इट. एंड डिविडेंड यू सेड इज द बोनस काइंड. हाँ जी, वो कंपनी जब जो उनको हासिल होता है, प्रॉफिट हासिल होता है तो उसको वो डिविडेंड के सूरत में रिटर्न कर रही होती है. रिटर्न भी कह सकते हैं आप इसको, सही है. जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न होता है उसको कह सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा अगर आपके पास 100 शेयर है, कंपनी ने 5% डिविडेंड दिया तो क्या मकसद होगा आपका, अब शेयर जो है 105 हो जाएगा, सही है. तो अगर फर्स्ट करें दिस एग्जांपल, डू जोन्स एक्चुअली announced for 2.45% dividend average, सही है. And another second company Altria announced showed a dividend yield of 3.05%. तो ये second company है is giving more dividend yield, सही है. तो अब क्या होगा, the statistical information or dividend yield indicate that a higher dividend yield for Altria group than the average for the Dow Jones. तो अब इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकला. Therefore, financial analysts might conclude that Altria Group was underpriced. क्यों कह रहे, अब असल में डू जोन्स ने 2.45% दिया और इसने कितना दिया 3%, इससे ज्यादा डिविडेंड दिया. तो एक वजह ये भी हो सकता है कि जो Altria ग्रुप है उसके शेयर्स की प्राइस कम है उसके मुकाबले में. तो ये देखना पड़ता है कि अगर सेम शेयर पे आ जाए तो समझ लें सेकंड ग्रुप ज्यादा अच्छा दे रहा है. लेकिन अगर एक कंपनी फर्स्ट कंपनी का जो है शेयर प्राइस ज्यादा है तो इसलिए वो डिविडेंड भी कम देगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बहुत सारी चीजें इसको डिविडेंड के जरिए भी कंपनी के, जैसे ही कोई कंपनी डिविडेंड ऐलान करती है ना तो उससे बाज़ औक़ात क्या होता है शेयर्स की प्राइस भी बढ़ जाती है मार्केट में, समझ. तो आपको पता है क्वेश्चन जी सर, अक्सर न्यूज आ रही होती है कि स्टॉक मार्केट में इतने पॉइंट्स का अप हुआ, इतने पॉइंट्स का डाउन हुआ, तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए हाँ, इसमें ये होता है कि अब ये तो जब स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं देयर आर 100 कंपनीज रजिस्टर्ड इन द स्टॉक मार्केट. 100 के करीब कंपनी रजिस्टर्ड होती है. अगर जब जो है ज्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना स्टॉक मार्केट में पैसा, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा इनफ्लो हो रहा होता है तो उस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है. लेकिन जब जो इन्वेस्टर अपना मनी या इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस वक्त तमाम कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, सही है. यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो है वो दिलचस्पी जब कम हो जाती है तो वो जो है सेल करना शुरू कर देता है शेयर को. तो उससे क्या होता है कि शेयर की प्राइस डिक्रीज होती है तो इसलिए स्टॉक इंडेक्स भी नेगेटिव में चला जाता है. जब स्टॉक इंडेक्स पॉजिटिव होने के क्या माने होता है कि जो इन्वेस्टर हैं दे आर इन्वेस्टिंग मोर मनी इन दी स्टॉक मार्केट, तो इससे उसका जो इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा होता है. तो कभी बढ़ रहा होता है कभी कम हो रहा होता है. लेकिन ये एवरेज वैल्यू होती है तमाम जो कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी उनके शेयर प्राइस की बेस पर. क्लियर? सर यहाँ पर डाउ एल्ट्रिया ग्रुप जो है उसका मतलब वो ज्यादा है ना, शेयर्स उसके ज्यादा है ना. अभी हमें तो पता नहीं है. एक वजह ये भी नहीं, डॉ वाले कम दे रहे हैं ना डिविडेंड,
वो ज्यादा देते हैं। अभी हमें उनके हर प्राइस का शेयर नहीं पता, शेयर प्राइस ऑफ शेयर नहीं पता कि उनके एक एक प्राइस से कितना समय प्राइस जो है हर शेयर की कितनी है, हर कंपनी की हमें नहीं मालूम है ना। तो इसलिए भी हो सकता है कि जो ज्यादा कंपनी डिविडेंड दे रही है उसके प्राइस, उसके जो शेयर प्राइस है उसकी कीमत कम हो, यानी कि अंडर प्राइस्ड हो, समझ रहे, ये भी एक वजह हो सकती है। तो जब आपके पास पूरा पिक्चर होगा कि इंडिविजुअल्स के जो है शेयर्स के प्राइस क्या है, उसके प्राइस क्या है, तो फिर आप कंपेयर, अगर मिसाल के तौर पे दोनों के बराबर है तो उसके बारे में ज्यादा बेनिफिट अल्टेरिया दे रहा है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जैसे होता है ना, पेट्रोलियम कंपनी जैसे होती है उनकी शेयर प्राइस ज्यादा होती है, और जैसे कोई और लोकल बैंक, कोई लोकल छोटे मोटे बैंक लेंगे उसकी प्राइस अलग होगी। एक कंपनी के मिसाल के तौर पे एक शेयर की प्राइस जो है फर्ज करनी है मिसाल के तौर पे 100 है, एक कंपनी जिसके प्राइस की शेयर मिसाल के तौर पे 500 है। तो ये देखना होता है प्राइस की शेयर जो है उसकी प्राइस क्या है, इंडिविजुअल प्राइस क्या है, तो उस पर बेस करता है, बहुत सारी चीजें उस पर बेस करेंगे। क्लियर सर लेकिन आपने कहा था कि जब डिविडेंड कोई कंपनी ज्यादा यील्ड करती है इसका मतलब है कि उसके शेयर्स भी ज्यादा है ना? नहीं, वो प्रॉफिट ज्यादा करती तो ज्यादा डिविडेंड देगी ना। अब इस पे होता है कि आप डिविडेंड समझ लें। अब ये है कि प्राइस की शेयर जब ज्यादा होगी ना, जैसे ज्यादा प्राइस होगी तो वो डिविडेंड पे कम देगा ना, समझ लें। जैसे एक कंपनी है मिसाल के तौर पे 100 रुपए है और एक कंपनी का 50 रुपए है, तो अगर वो कंपनी जिसका प्राइस का शेयर 100 रुपए है तो अगर वो 2.5% भी दे तो वो दूसरी कंपनी जिसका 50 रुपए उसके 5% के बराबर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि उसका 2.5% उसके 5% के बराबर हो जाएगा। अगर एक कंपनी का प्राइस का शेयर कितना है 100 रुपए है, लेकिन वो दे रहा 2.5%, एक कंपनी इसका प्राइस का शेयर 50 है लेकिन वो दे रहा 5% डिविडेंड, तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ गए जी? I have a Yes, question. sir, I am. सर एक स्टॉक ओवर प्राइस होने से इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा? नहीं, इन्वेस्टर ओवर प्राइस में ये होता है ना कि कंपनी जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, जैसे आमतौर पे आप शेल की प्राइस ले, शेल के शेयर्स खरीदें, शेल जो आपके पेट्रोलियम में है, तो उनके स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस होती है बहुत ज्यादा होती है, समझ। जैसे आज बात छोटी कंपनी होती है तो उनके प्राइस की शेयर कम, तो कंपनी के एसेट्स पे भी मुनसर होता है, समझ रहे, कि टोटल एसेट्स कितना, उसके नेट एसेट्स के बुनियाद पे शेयर्स की प्राइस कैलकुलेट की जाती है, बात समझ रहे। जी सर, तो सर वो शेयर डिविडेंड भी ज्यादा होंगे। अब वो होता है कि उसके बाद ये होता है कि वो कितने % वो शेयर लॉन्च कर रहा है, कितना कर रहा है, बहुत सारी चीजें यार, एक बड़ी वास्ट फील्ड है स्टॉक मार्केट, समझ रहे। उसके लिहाज से वो कंपनी बाकायदा कैलकुलेट की जाती है कि शेयर्स की प्राइस कितनी होगी। फिर मार्केट में भी आपको पता है जब कंपनी प्रॉफिट अनाउंस करती है उससे भी शेयर की प्राइस जो है कम और ज्यादा हो रही होती है। ये डायनामिक प्रोसेस। सर शेयर प्राइस ज्यादा होने से कि जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या फायदा होगा? फायदा होता है ना, उनके शेयर की कीमत बढ़ जाती है, तो वो फ्यूचर में अगर सेल करें तो उनको प्रॉफिट होगा। जी जी, प्रॉफिट होगा। अगर शेयर की प्राइस कम हो जाए तो उसका नुकसान हो गया, समझ लीजिए। सही है सर, थैंक यू। सर अंडर प्राइस होने का मतलब ये है कि शेयर्स कम होते हैं किसी कंपनी के? नहीं, उसने कम रखा हुआ है इसलिए है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, दो कंपनी, एक का 100 है एक का 50 है। अब जो है मिसाल के तौर पे पहली कंपनी जिसका 100 है तो वो अगर 2.5% भी दे ना तो वो दूसरी कंपनी जिसका 50 है उसको 5% के बराबर हो जाए, समझ नहीं? सही है, समझ रहे हो, क्योंकि वो जब आप अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, समझ, एवरेज में। सही हो क्या? तो मतलब शेयर्स जितने ज्यादा होंगे डिविडेंड उतना कम होगा? शेयर्स की प्राइस नहीं, वो कंपनी पर लॉन्च हो तो बताया जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि ये वजह हो, वो तो डिपेंड करता है ना। अगर एक कंपनी जिसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया, प्रॉफिट पे भी डिपेंड करता है डिविडेंड प्राइस पे नहीं डिपेंड, प्राइस पे जो डिपेंड करता है इस हाथ में होता है कंपनी उस वक्त कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके लिहाज से वो डिविडेंड ऐलान करती है। कंपनी ये नहीं देखती दूसरे के क्या है, दूसरे वो अपना देखती कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट। मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ना, लेकिन तो यहाँ पर उसके अगर वो अंडर प्राइस थी, अगर उसके मतलब शेयर्स कम थे, शेयर्स ज्यादा थे तभी उसका डिविडेंड कम था। शेयर्स के प्राइस उसका हो सकता है शेयर्स के प्राइस ज्यादा हो, बहुत सारी या ये होता है, बाद ये भी होता है कि कंपनी का तो शेयर प्राइस है, फिर प्रॉफिट कितना कंपनी कर रही है उसके लिहाज से भी डिविडेंड देती है, समझ। दोनों बातें होंगी, प्रॉफिट और शेयर प्राइस दोनों चीजें काउंट करती है कि इस कंपनी ने उस वक्त कितना प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट वो पास ऑन करना होता है, समझ रहे। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है कि अ फाइनेंशियल एनालिस्ट माइट कंक्लूड दैट एल्ट्रिया ग्रुप वाज अंडर प्राइस,
ये ये एक कंक्लूजन पर एक हम माइट कैसे आए एक हैं? कंक्लूजन अगर ये हो सकता है कि अगर दोनों के शेयर प्राइस में कम इसकी कम है तो उस माइट लफ्ज कहा जा रहा है। मैं जैसे कह रहा हूँ, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि इनकी प्रॉफिट ज्यादा हो, बात समझ नहीं, उस सही है, पीरियड में सही है। हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो, तो उसने लफ्ज माइट इस्तेमाल किया गया है, समझ नहीं, वो तो एक्चुअल डेटा के बेस। क्वेश्चन जी तो मेरा क्वेश्चन है कि अक्सर जो होती है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन उनको प्राइवेटाइज किया जाता है, मतलब कि हाँ। जब वो प्रॉपर्ली काम ना कर रही हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है? एक तो ये होता है ना कि देखिए ना, गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया में ये होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे आप जाएंगे ना अमेरिका में जाएंगे तो गवर्नमेंट के 2-4 ही इदारे होते हैं, वो सब एक तो वो तो टोटली प्राइवेटाइज कर देना, अमेरिका तो टोटली प्राइवेटाइज कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको पता है कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। जब प्राइवेट सेक्टर्स के लोग आते हैं ना, तो वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है तो उनका इंटरेस्ट होता है, वो चाहते हैं कि भाई लॉस ना हो। तो कैसे? फिर ये मैनेजमेंट जो है, समझ ना, मैनेजमेंट जो है, जो जैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा कहीं पे, मिसाल के तौर पे 1 करोड़, तो मैं चाहूंगा कि भाई मुझे फायदा हासिल हो, समझ। तो गवर्नमेंट इसलिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा होता है, समझ। वरना आपको पता है कि तो गवर्नमेंट में तो जाहिर सी बात, गवर्नमेंट ऑफिसर उनका क्या इंटरेस्ट है कि कंपनी फायदे में हो, या ये फायदे में जाए नुकसान में जाए, उन्हें तो तनख्वाह मिलना है, समझ रहे। एनीवे सर जी सर अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो जी उससे जी कंपनी को क्या फायदा होता है? भाई, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट आती है, उससे वो बिजनेस करते हैं। जैसे बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जैसे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है ना, तो क्या होता है, बॉन्ड्स इशू करती है, समझ रहे, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, समझे। तो उससे क्या होता है, वो कंपनी बाद में जाके बिजनेस करती है, या अपने अपने यानी कि जो कंपनीज में के प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारी, आपको पता है जब पैसा ज्यादा होगा तो आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। जब रिक्वायरमेंट होती है तो फिर कंपनी अपना शेयर बेच रही होती है, समझ रहे। सही। अच्छा, एक तो ये जैसे हमने बात की फाइनेंस, तो फाइनेंस में आजकल स्टॉक मार्केट जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये प्राइस ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो इसमें मैं एक काम आपको दिखाना चाहता हूँ। आई एम चेंजिंग ये, तो जैसे हम, ये आपको नजर आ रहा है ब्लैक शोल मॉडल, यस, आपको ये नजर आ रहा है ब्लैक शोल मॉडल, ब्लैक शोल्स, Yes, sir. दे आर 2 जर्मन साइंटिस्ट, ओके, ब्लैक एंड शोल्स। तो बेसिकली ब्लैक शोल मॉडल क्या है, समझ लीजिए। ब्लैक शोल मॉडल इज यूज टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो मार्केट, स्टॉक मार्केट में जब शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए ये मॉडल यूज किया जाता है, ब्लैक शोल मॉडल। इज इट क्लियर? तो ये तो स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली, जितने भी जैसे यूरोपियन स्टॉक मार्केट या अमेरिकन स्टॉक मार्केट, ये सब वो लोग ये ब्लैक शोल मॉडल्स को यूज करते हैं, सही है। तो ब्लैक शोल मॉडल में जो मेन अजम्पशन क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि व्हेन यू इन्वेस्ट मनी in the stock market, the value of the future value of your investment is at risk. It may be increase or it may be drop, okay, or it may be decrease. तो इसको हम कहते हैं रैंडमनेस। तो इस रैंडमनेस में एक मोशन होता है जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? इट इज रैंडम मोशन। समटाइम इसको हम जो रैंडम वॉक भी कहते हैं। रैंडम वॉक क्या होता है या ब्राउनियन मोशन क्या होता है कि स्टॉक की प्राइस अप गई, फिर लो आई, फिर अप गई, फिर अप गई, फिर लो आ गई, फिर अप गई, समझिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे इसको हम ये कहते हैं कि ब्राउनियन मोशन मिसाल के तौर पे, अकॉर्डिंग टू द मेन प्रॉपर्टी ब्राउनियन मोशन की क्या है कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन टुडेज वैल्यू, यानी कि जो कल की जो फ्यूचर वैल्यू है एसेट्स की, वो आज के पे डिपेंड नहीं, पास्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। यस्टरडे आपके शेयर्स की कीमत क्या थी उस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि आज इस वक्त शेयर्स की कीमत क्या है वो कल के जो शेयर है, टुमारो की जो शेयर की प्राइस है वो इस पर डिपेंड करेगा, आज पर, कल यानी कि कल गुजरे हुए कल पर डिपेंड नहीं करेगा। टुमारो डिपेंड्स ऑन टुडे, नॉट ऑन
yesterday. So this is the main idea, main characteristic of Brownian motion. समझ आ गया? What is Brownian motion? Brownian motion, it is a random motion. The future or tomorrow depends on today, not yesterday. So Black and Scholl actually use the Brownian motions to compute the mathematical model of the future value of your assets. That is called Black-Scholes model. You can see equation number 8. आपको नजर आ रहा है या और बड़ा करूं? Is it visible equation? So you can see C is the future value of the assets, and you know the future value of the assets depends on two things. One is S is the present value of this of the assets, and on time. So this is a stochastic differential equation. This equation number 8 is called Black-Scholes model. After solving this partial differential equation, you can see this is a second order partial differential equation, and after solving equation number 8, we get equation number let's see, equation number 9. This called Black-Scholes formula. This Black-Scholes formula is used to calculate the future value of the assets. तो ये आमतौर पे स्टॉक मार्केट जो है, यूरोपियन स्टॉक मार्केट, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, वो इक्वेशन नंबर 9 के जरिए आप फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें आप इंपॉर्टेंट थिंग ये देखेंगे इक्वेशन नंबर 9 में, इसमें ये जो फाई ऑफ D1 से मराद है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, D1 इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसी तरह से इसमें स्टैटिस्टिक भी मौजूद है और साथ में साथ आपने देखा कैलकुलस भी मौजूद है. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास था, इसको हम कहते हैं स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन. सही है. तो स्टॉक मार्केट भी जो है वो इस इक्वेशन से, जैसे यूरोपियन स्टॉक मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है वो Black-Scholes मॉडल को यूज करती है फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द स्टॉक शेयर्स. ओके, क्वेश्चन. यस सर, D1 and D2 टुडे एंड टुमारो को रिप्रेजेंट कर रही है. नहीं, ये D1 जो है समझ लीजिए, देखिए इसमें S जो है वो तो प्रेजेंट वैल्यू है, और इसमें सब ये G1 देखिए फार्मूला दिया है ना, तो ये T जो है टाइम भी आ रहा है, टाइम ये टाइम लैग है, कैपिटल T एक टाइम पीरियड है, दूसरा ये फ्यूचर टाइम है. तो ये इसका फंक्शन है, एसेट्स का भी फंक्शन है, और के भी यहाँ पर बताया गया है कि K जो है ये सारे पैरामीटर्स हैं. तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, बैठ कर भी इसको भी करने, इसकी असल में बात होगा हम ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एक सब्जेक्ट है फाइनेंस में, बड़ा मुश्किल फील्ड होती है. तो उसमें इसकी पूरी डेरिवेशन कराई जाती है और उसका इस्तेमाल भी कराया जाता है, जैसे इस पेपर में भी एप्लीकेशन बताया गया है. समझ रहे? तो लेकिन ये आप ये उस वक्त कर सकते हैं जब आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टोकास्टिक प्रोसेस आपको आता हो, तो फिर आप ब्राउनियन मोशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. मैंने सिर्फ आई हैव गिवन जस्ट आइडिया अबाउट द Black-Scholes मॉडल. Black-Scholes मॉडल जो है, जैसे मैंने कहा, जितने भी यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट, इवन फार ईस्ट के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो इन मॉडल्स पे बेस करती हैं. मैं आई वाज इन यूएसए फॉर माय पोस्ट डॉक्टरल स्टडी, तो मुझे पता चला एक प्रोफेसर थे स्टैट्स डिपार्टमेंट के. सही है. तो उनका काम ही था यही शेयर प्राइस वगैरह डील फोरकास्ट करते थे. वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए, उनके मॉडल इतने अच्छे काम कर रहा था, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरशिप को रिजाइन करके अपना मार्केट, अपनी कंपनी बना दी. समझ रहे? बाहर में भी होता है फाइनेंशियल. और फिर उसके बाद इतने अमीर हो गए, समझ ले, कह रहे, मैंने पढ़ा था मिलियंस ऑफ डॉलर वो यूनिवर्सिटी को फंड करते थे. समझ रहे? पूरा नया डिपार्टमेंट खोलते थे. तो इतने ज्यादा अमीर. अमेरिका में क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट की बड़ी जरूरत होती है. अगर आप बहुत अच्छा एक्यूरेटली फोरकास्ट करें और या एडवाइस दें तो आपकी बड़ी वैल्यू है. समझ रहे? तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की बड़ी दुनिया में हर जगह वैल्यू होती है. तो फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठकर समझ रहे, बहुत बड़ी फील्ड है. Anyway, तो ये आई एम शोइंग यू जस्ट के व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द स्टॉक मार्केट. समझ आ गया? थोड़ा सा आपको बताने के लिए हमने सिर्फ बताया. सर जी सर, इक्वेशन 8 क्या थी? जिसको हम कहते हैं Black-Scholes फार्मूला. वो इक्वेशन जो 8 था ना, वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन है. जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो ना, तो उसको हम सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं. समझ रहे?
Sir, is this अभी model आप दो applicable in Pakistani stock exchange market? हमारे यहाँ साइंटिफिकली रन होता है कि नहीं होता है, आई डोंट नो, फोरकास्टिंग इस पे होती है कि नहीं होती, लेकिन ये कि बैकअप में जैसे मैंने 3 मार्केट बताया, यूरोपियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान में भी बैकअप अब जो है ये जब से स्टैंडर्डाइज किया गया है तो शायद पाकिस्तान स्टॉक, पहले तो आपको पता है ना कराची स्टॉक मार्केट, 3 अलग अलग मार्केट होती है, अब तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो मुझे यहाँ के मार्केट का सब पता नहीं कि वो साइंटिफिकली रन होती है या कुछ और। बैकअप ये तो ये होता है कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो जो शेयर प्राइस की फ्यूचर वैल्यू यहाँ क्या करते हैं, मुझे ये प्रैक्टिकल इनका नहीं पता यहाँ के लोगों को। सर जी ये हम फॉर्मूलाज की डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे आपके पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है भाई, इसलिए तो मैं जस्ट आई एम showing you the application of statistics and mathematics in stock market, ये बता रहा हूँ आपको। ये तो मैंने कहा ये जो लोग खास तौर पे ईएम करेंगे या इकोनॉमिक्स करेंगे तो वहां पर आप एक सब्जेक्ट होगा देखिएगा, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, इवन हो सकता है कि एसीएफ वाले को में भी सब्जेक्ट हो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, वहां पर फाइनल ईयर में ये पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट, समझ रहे। अभी तो आपको जस्ट आई एम शोइंग द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इन स्टॉक मार्केट, ये बता रहा हूँ मैं आपको, सही है। ये आपको कुछ करना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया है कि ये इसकी एप्लीकेशन है, सही है। Anyway, now I will change my slide. I will move towards chapter number 1. हम कहाँ थे? We were talking, so about finance. फाइनेंस So ये तो बात हो गई ना, तो फाइनेंस तो आपको पता है कि सारी मैथ्स और स्टैट्स का ही गेम है आजकल, है। Anyway, even the market एनालिस्ट होते हैं, देयर आर सम मार्केट में क्या होता है, मार्केट एनालिस्ट बेसिकली एग्जामिन दी कस्टमर्स बिहेवियर, सही है। मार्केट एनालिस्ट जो होते हैं वो कस्टमर बिहेवियर को एग्जामिन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ही जैसे मिसाल के तौर पे एक कोई प्रोडक्ट है, या समझ लें कार है, एक प्रोडक्ट है, सही है, 1000 सीसी कोई कार है, तो मुख्तलिफ कंपनीज होती है, टोयोटा है, होंडा है, देयर आर सो मेनी कंपनी, या सब चलिए कार ना बात करें, कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसके बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, सही है। अब असल में वो मार्केट एनालिसिस वो करता है, ये है कि जो कस्टमर्स होते हैं उसके बिहेवियर को एग्जामिन करता है कि ब्रांड 1 जो है वो लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसके लिए वो जो मार्केट से पूरे तमाम कंपनीज का डेटा को जमा करके फिर वो कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करता है। तो इसके लिए पूरा बाहर मुल्कों में तो बड़ा साइंटिफिकली रिटेल चेकआउट काउंटर्स होते हैं, वहां से मुख्तलिफ कंपनीज क्या करती हैं, तमाम कंपनीज का डेटा जमा करती हैं, फिर उस जो ब्रांड मैनेजर होता है वो उन डेटा को रिव्यू करता है। तो वहां पर स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है कि कस्टमर्स के कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट जो एक खास प्रोडक्ट है उसके ब्रांड 1 को क्यों प्रेफर कर रहा है, या फिर वो देखता है कि बस मार्केट एनालिस्ट एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो वहां पर भी वो स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। फिर ये भी होता है कि जैसे एक कंपनी है तो उसको ये एग्जामिन करना होता है कि भाई कि मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ इनके जो है स्टोर्स हैं या मुख्तलिफ शॉप्स हैं, तो कहाँ कस्टमर ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। तो मार्केट एनालिसिस सारी चीजों का रिव्यू करता है, तो उसको डेटा चाहिए होता है। तो आमतौर पे जो बाहर मुल्कों में तो जाहिर सी बात है पूरा डेटा होता है, तो कंपनीज डेटा परचेज करती हैं, उसके बाद मार्केट एनालिस्ट उनको जो है एनालाइज करता है, समझे। तो मार्केट एनालिसिस भी होते हैं, बहुत सारे एनालिसिस, क्लियर। वहां पर भी फिर इसके अलावा अब ये मार्केटिंग एनालिस्ट जो होते हैं वो डिमांड को देखते हैं सर, की मतलब डिमांड, मार्केट में सप्लाई, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, सारी चीजें होती हैं। डिमांड एंड सप्लाई भी देखते हैं, फिर कस्टमर वो बताया ना कि एक ब्रांड को क्यों प्रेफर कर रहा है, तो कस्टमर के बिहेवियर को भी एनालाइज कर रहे होते हैं। क्वालिटी कस्टमर के बिहेवियर को तो क्या क्वालिटी की वजह से तो नहीं है या प्राइस की वजह से लोग ऐसा प्रेफर नहीं करें, मतलब इसमें सारे कस्टमर बिहेवियर को देखना पड़ता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों ब्रांड 1 को प्रेफर किया जा रहा है, समझे, किसी खास ब्रांड। तो ये तो अब ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी स्टाइल इस्तेमाल होती है खास। तो quality control is very important in any production. So how to monitor
the quality of the output of a production. तो उसके लिए क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल मेथड पूरा होता है. मिसाल के तौर पे जैसे एक फर्ज कर लें, फिलिप्स बल्ब जो है, फिलिप्स कंपनी है, मिसाल के तौर पे रोजाना फर्ज कर लें 1 लाख बल्ब प्रोड्यूस करती है, सही, एलईडी बल्ब प्रोड्यूस करती है. तो अब क्वालिटी चेक करना है हमें कि कितने % जो है बल्ब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है. तो अब उसके लिए एक तो रहेगा तो ये कि आप एक एलईडी बल्ब को चेक करें कि कौन सा कितने % डिफेक्टिव है. तो उसमें ये नहीं किया जाता. उसमें क्या किया जाता है कि मिसाल के तौर पे कि 1 लाख है ना, तो आप मिसाल के तौर पे रैंडमली 1000 सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कितने % जो है वो डिफेक्टिव बल्ब हैं. तो उससे फिर वो पूरे पॉपुलेशन के बारे में, इंटायर डेटा के बारे में, इंटायर बल्ब्स के बारे में आइडिया कर लेते हैं. तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्वालिटी को मेजर करने के लिए सैम्पलिंग एनालिसिस किया जाता है. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल ये भी एक स्टैटिस्टिक्स में ये पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया था, हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट. सही है. तो इसमें पूरे प्रोसीजर होता है क्वालिटी कंट्रोल को मेजर करने का. आजकल तो आपको मालूम है सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं चेक की जाती, बाज़ औक़ात कंपनी की भी क्वालिटी प्रोडक्ट की जाती है. जैसे IBA एक इदारा है, तो उसका भी ISO 9000 आपने सुना होगा. जैसे मुख्तलिफ कंपनी होती है, तो एक ISO 9000 अब तो 9002 और 3 तो वो भी क्या होता है, पूरी कंपनी का क्वालिटी को मेजर कर रही होती है. तो बहरकैफ क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करता है. इवन जब बाज़ों का डेटा होता है ना, तो हमें क्या होता है उसकी भी क्वालिटी मेजर करनी होती है. जैसे हमने कोई डेटा कहीं से लिया, तो अब उसमें एरर भी हो सकता है डेटा में. अब ये कि उसमें से कितने % डेटा एरर, अगर एरर है तो आप उसको एरर को एलिमिनेट कर दें. तो आउटलायर्स आपको डेटा, तो वो क्वालिटी ऑफ डेटा भी चेक किया जाता है, समझ. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी जाहिर सी बात मार्केट में भेजने से पहले जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी पहले से चेक कर लेती है, तब मार्केट में भेजती है. वरना आपको पता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी लॉन्च होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कार एक लॉन्च की गई, फिर बाद में वापस ले लिया गया. जैसे मोबाइल बाज़ कंपनी ने लॉन्च किया एक, फिर बाद में वापस ले लिया, बाद में एरर आ रहा है, समझ. तो बहरकैफ ये, तो उसको हम कहते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो बहरकैफ क्वालिटी कंट्रोल पूरा एक सब्जेक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल. तो ये बहरकैफ इसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है. तो उसमें देखना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्शन है उसमें कितना एरर मौजूद है, सही है, और कितना एक्यूरेट है. तो इसको हम, जैसे आपको पता है जापानीज कंपनी होती है ना, तो जैसे कार बनाती है, तो आपको पता है कि कार तो एक फाइनल एक प्रोडक्ट है कार, लेकिन आपको पता है कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं. अब जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है ना, तो 100% तो वो एक्यूरेट तो नहीं होता ना, उसमें कोई ना कुछ % एरर होता है, समझे. तो कार्स आपको पता है कि बहुत सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, सही है. तो अब होता ही है कि जैसे जापानीज, बात दूसरी जो कंपनीज होती है ना, तो वो क्या करती है, मिसाल के तौर पे 99% अगर एक्यूरेट है तो वो जाने देती हैं. लेकिन जापानीज कंपनी क्या करती है कि वो 100% हर पार्ट्स को वो कहती है कि एक्यूरेट होना चाहिए. तो उससे क्या होता है, अगर मिसाल के आपने 1% भी छोड़ दिया, ये क्या कि भाई ये नेग्लिजिबल है, लेकिन एक्यूमुलेट होकर जब सारे कार असेंबल होगी तो उसमें एरर ज़्यादा रह जाएगा. तो एक्यूमुलेशन हो जाती है बाज़ औक़ात एरर में. तो जापानीज कंपनी का ये मशहूर है कि वो हर चीज़ में, जाहिर सी बात जो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है तो वो एक आइटम नहीं होता, उसमें 100,000 ऑफ पार्ट्स उसमें लगे होते हैं. तो वो हर पार्ट्स को 100% चाहते हैं कि एक्यूरेट हो. तो इस तरह से क्वालिटी को मेजर करने के लिए परफेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एरर ना हो, तो आपको ये करना पड़ता है. लेकिन जाहिर सी बात उसके लिए आपके पास प्राइस बढ़ जाती है ना. तो एनीवे क्वालिटी कंट्रोल बहरकैफ स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है जो हर जगह रियल लाइफ में अप्लाई किया जा रहा होता है. फिर इसके अलावा आजकल जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, तो उसकी भी एक, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए भी बाज़ औक़ात स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया जाता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये सही काम करने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क को एसेस करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल की जा रही होती है, सही. लेट्स सी. Just a minute. Okay, अब हम now we are moving towards section number 1.2, data and data sets. So data basically, data are facts and figure collected
analyze and summarize for presentation and interpretation. सही है? तो data basically just a minute. So so data क्या होता है? All the data they are collected in a particular study are referred to as a data set. अब data जैसे मैंने कहा ना कि आप मिसाल के तौर पे sometime we perform, data क्या होता है? Sometime we perform the experiment, फिर उसके बाद we gathered the information, तो उसको हम कहते हैं data. मिसाल के जैसे मिसाल के तौर पे जैसे I was talking about the quality control, जैसे आपके पास 100 बल्ब आपने चेक करना शुरू किया, तो आप क्या करेंगे? आप या तो बल्ब डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, सही है? तो ये आप एक एक करके डेटा लिखना शुरू करेंगे. पहला बल्ब लिया, डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव के कॉलम में डालेंगे, दूसरा बल्ब अगर नॉन डिफेक्टिव, तो इस तरह से आप एक डेटा जनरेट कर रहे होते हैं. समटाइम यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम कहते हैं डेटा. सही है? जैसे आप इस वक्त टेम्परेचर क्या है, तो आपने उसका टेम्परेचर नोट कर लिया, तो वही डेटा हो गया. इसी तरह से आपकी जो पूरी क्लास है, मैं उसका हाइट की मेजरमेंट करना शुरू कर दूं, तो वो एक डेटा हो जाएगा. इंफॉर्मेशन होता है डेटा. इसी तरह से मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों की एज का डेटा ले लूं, इंफॉर्मेशन, तो वो एक डेटा हो जाएगा. आपसे मैं पूछूं कि आपके नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, तो ये एक डेटा हो जाएगा. तो डेटा बेसिकली क्या होता है? इंफॉर्मेशन होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो वो कलेक्ट किए जाते हैं बाय परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट. तो अब जैसे मिसाल के तौर पे टेबल नंबर 1.1 shows a data set containing information for 25 mutual funds. ये म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है 25, तो उनका डेटा दिया हुआ है. तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड. पहला टाइप क्या है? डी रिप्रेजेंट डोमेस्टिक इक्विटी, आई रिप्रेजेंट इंटरनेशनल इक्विटी, FI रिप्रेजेंट फिक्स्ड इनकम. तो ये मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट है. और नेट एसेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग प्राइस पर शेयर ऑन पर्टिकुलर डेट. तो ये आपके पास आई हैव शोन टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 1.1. ओके, तो इन द फर्स्ट कॉलम, सर काइंडली जरा पिछली स्लाइड रिपीट कर दें. देखिए ये डेटा के बारे में तो क्लियर है. डेटा क्या? डेटा इज इन्फॉर्म. यस सर. सर ये जो टेबल के बारे में क्या? हाँ, टेबल ये है 25 म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका डेटा है. सही है? ये समझिए एक तरह से ये स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स है, यानी कि दूसरे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. म्यूचुअल फंड्स के माने वही हो जाता है, समझे? तो इसमें 3 तरह के फंड टाइप्स हैं. एक तो है डोमेस्टिक इक्विटी, एक होता है कि एक है इंटरनेशनल इक्विटी, यानी पूरे इंटरनेशनल लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. एक होता है फिक्स्ड इनकम, जैसे बैंक है ना, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम. सही है? तो तीन तरह के फंड टाइप्स है. या एक डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, और एक है फिक्स्ड इनकम. तो 3 टाइप्स हैं. और टोटल कितनी कंपनीज फंड्स हैं? कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी है, देयर आर 25 म्यूचुअल फंड्स. तो What does funds mean over here? यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फंड्स का मतलब क्या है? ये जो कंपनी में या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको वो भी एक फंड होता है ना. सही. फंड से मुराद वो इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके कंपनी का टाइप हो जाते हैं. फंड से मुराद ये इन्वेस्टमेंट. सही है? And what is equity? इक्विटी वाली बात होगा जो ये एक होता है ना, इक्विटी ये होता है कि यानी कि जैसे एक होता है फिक्स्ड इनकम. इक्विटी हो जाता है कि वो बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, तो उसको हम इक्विटी कह देते हैं. तो डोमेस्टिक इक्विटी क्या हो गया सर? फिर सर नहीं आया समझ, मुझे इक्विटी का मतलब नहीं समझ आया. इक्विटी ये होता है कि वही शेयर समझ ले. शेयर जो आप कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो जो शेयर्स प्राइस समझ ले, वही है शेयर्स टाइप की चीजें. इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, बिल्कुल ठीक है. ओके. लेकिन ये होता है फिक्स कैपिटल नहीं है, समझ ले. आपकी वैल्यू है वो कम ज्यादा हो सकती है. तो डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं कहते. फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, समझ, इन्वेस्टमेंट कह लें. अमाउंट जब फंड आपने इन्वेस्ट किया उसको इक्विटी कह जाते हैं. फिर इंटरनेशनल की माना, ये इंटरनेशनल मार्केट में वो लॉन्च कर रहे हैं, वो समझ रहे. बालों का होता है ना, इंटरनेशनल लोग भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कंपनी में. एक होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, समझे. और एक तीसरे टाइप है क्या? फिक्स्ड इनकम, यानी कि आपको जब जो पैसा इनकम किया, आपको पता है कि आपको जैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम होता है. और यहाँ पर नेट एसेट से क्या माने? क्लोजिंग प्राइस पर शेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट. सही है? तो ये
ये देखिए, let's see on the first column we have name of 25 mutual companies. ये देखें, ये मुख्तलिफ कंपनीज के नाम दिए हुए इन द फर्स्ट कॉलम. क्लियर? ये मुख्तलिफ कंपनीज के नाम दिए हैं. द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट नेम ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सही है. इन द सेकंड कॉलम, यू नो, type of mutual funds is given here. IE represent international equity, FI represent fixed income, D represent domestic equity. तो हर कंपनी के ज़ाहिर सी बात है कोई एक टाइप होती है, तो ये सारे सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट फंड टाइप. ओके. एंड द थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट द नेट एसेट वैल्यू. जैसे ये फॉर द फर्स्ट कंपनी नेट एसेट यानी कि $14.37. इसके माने क्या है? दिस इज द यूनिट प्राइस शेयर. ओके. एक शेयर की प्राइस कीमत दी हुई हर कंपनी की इन द थर्ड कॉलम. देन ये रिटर्न इन परसेंटेज में बता रहे हैं कितना रिटर्न ये दे रहे हैं. 30%, 30.5, 3%, 3.3%. ये रिटर्न की कंपनी की रिटर्न ये है. फिर ये रिटर्न मतलब सर ये प्रॉफिट दे रहे हैं. रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट. सर ये डिविडेंड ही है ना, रिटर्न? हाँ जी जी. तो ये परसेंट में देके आपको दिखा रहे हैं ना. बास कंपनी 4%, बाय 5% है. तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे होता है. फिर लेकिन ये डॉलर में है, समझ. ये नहीं परसेंटेज में, सॉरी, रिटर्न परसेंटेज में. तो वही डिविडेंड टाइप की चीज हो गई. तो इस तरह से ये है एक्सपेंस. कंपनी की जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये वो है. फिर इसके बाद कंपनीज की रैंक की जाती है. तो 3 स्टार, 4, 5 स्टार. तो यू नो ये जो एवरेज रिटर्न ये प्रॉफिट है. जी जी. रिटर्न को प्रॉफिट ही कह सकते हैं. बिल्कुल. डिविडेंड कहना है, प्रॉफिट कहना है, जो भी कहना है, समझ. तो अब आप इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि लास्ट कॉलम में क्या है. आपके पास रैंक है 3 स्टार, 5 स्टार, 3, 4, 5 स्टार्स. तो इसको कहते हैं रैंक. ओके. तो इंपॉर्टेंट चीज है फोर्थ कॉलम में क्या था? ये है एक्सपेंस का रेशियो है. एक्सपेंस कि कितना एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का रेशियो है. ये कैलकुलेट करते तो हैं. सर ये कंपनी अपने ऊपर कर रही है वो एक्सपेंसेस है, नहीं कंपनी दूसरे प्रोडक्ट पे कर रही है उनके एक्सपेंसेस है. नहीं, ये कंपनी का जाहिर सी बात है कि एक्सपेंस होता है तो उसका वो भी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है. समझ रहे? एक्सपेंस इंडेक्स के फॉर्म में. एक्सपेंस रेशियो निकलता कैसे? एक्सपेंस रेशियो जो है, एक तो ये होता है कितना आपने कंपनी के अखराजात कितना है, कितना इनकम है, सारी चीज़ों पे एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंडिचर्स पे बेस करते हुए ये आप निकाल रहे होते हैं. जैसे बात ये होता है ना कि आपका इनकम तो कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो समझ लीजिए वो 1 से ज़्यादा होगा. समझ रहे? लेकिन तो ये डिपेंड करता है. जैसे 1 से ज़्यादा तो इसके माने कि आपका जो है इनकम ज़्यादा है, तो ये देखना समझ रहे. तो ये कम 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो इनका जैसे मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि बास कंपनी का जो है एक्सपेंस रेशियो 1 से ज़्यादा है, बास कंपनी का 1 से कम है. तो ये बेसिकली एक्सपेंस रेशियो जो है इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के लिहाज से बनता है. सही है. इट इज. अच्छा तो सर ये स्टार का क्या हुआ है, मतलब ये हर कंपनी को रेट किया जाता है ना. कंपनी 5 स्टार के माने बहुत अच्छी कंपनी है, 3 स्टार के माने तो ये रैंक दिया जाता है. समझ रहे? ये रैंक है. समझ. तो अब इम्पोर्टेंट चीज है, देखें देयर, ये तो आपके पास फर्स्ट कॉलम जो है ये तो कंपनी का नाम ही, इतने कोई इसके बाद ये देखें 5 कॉलम्स हैं. ये हर कंपनी के 5 डेटा मौजूद है, 5 ऑब्जर्वेशन मौजूद है. सही है. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेकंड कॉलम एंड लास्ट कॉलम जी, सेकंड और लास्ट कॉलम जो है दे आर क्वालिटेटिव डेटा. ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा. IEDE, इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा. इस तरह से रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, दे आर ऑल क्वालिटेटिव डेटा. तो इसको हम जो है क्वालिटी, जबकि इसके मुकाबले में ये जो एसेट्स वैल्यू, रिटर्न, एक्सपेंडिचर रेशियो, दे आर न्यूमेरिकल वैल्यू. तो 2 तरह के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा और न्यूमेरिकल डेटा. तो ये सर ये किस बेस पे दिया जाता है? नहीं, ये आप जैसे बात है, आप कंपनी के टाइप बता रहे हैं तो कंपनी का टाइप तो नॉन न्यूमेरिकल ही होगा ना भाई. तो आपने डी का ये ना, तो ये जो सेकंड कॉलम है ये क्या है, कंपनी टाइप. तो इसको ये हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव डेटा है. रैंक दिया आपने, परफॉर्मेंस के बेस पे रैंक दिया जाता है. सेकंड रैंक, 2 स्टार, 3 स्टार. सही है. तो ये भी क्या होगा, क्वालिटेटिव.
के मुकाबले में ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम जो है दे आर न्यूमेरिकल डेटा। तो दो तरह के डेटा हो सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। एनीवे सही। सर आप इन डेटा की एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से दे सकते हैं शॉर्ट में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा विच आर नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जैसे हमने कहा फंड, टाइप ऑफ फंड्स, सही है। अच्छा, इसमें ये भी होता है बाज़ औक़ात हम जो है ना आसानी के लिए इसको हम बाज़ औक़ात जीरो, मिसाल के तौर पे आई को मैं 1 कह दूं, एफ आई को क्या कह दूं मैं 2 कह दूं, और डी को 3 कह दूं। वैसे तो मैंने इसको आप कह दिया क्या न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि ये जो 1 2 3 है इट रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ फंड, इट इज नॉट द न्यूमेरिकल डेटा, सही है। तो इसको हम क्वालिटेटिव डेटा ही कहेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर आई एम। सही है। इसी तरह रैंक है, तो रैंक क्या होता है, आप जैसे पोजीशन आती है ना किसी क्लासरूम में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ये रैंक होता है। तो ये भी क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता। वो अलग बात है कि न्यूमेरिकल नंबर्स पे बेस करते हुए बनाते हैं, लेकिन ये भी परफॉर्मेंस पे बेस पे बनते हैं। लेकिन ये रैंक कर दिया तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया। जैसे एक बल्ब को आपने चेक किया, वो या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, सही है, ये भी क्वालिटेटिव डेटा होगा। सर रैंक ज्यादा होता है तो बेहतर होता है या बुरा? हाँ नहीं, तो लेकिन ये क्वालिटेटिव डेटा हुआ, वो तो है कंक्लूजन आप निकालेंगे मेजर। तो क्वालिटी दो तरह के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स न्यूमेरिकल डेटा, जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, सही है। ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम है ये क्या है, दे आर न्यूमेरिकल डेटा। दो तरह के डेटा हो सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। क्लियर? लेट्स मूव। अब क्वांटिटेटिव वो होती है जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। जी जी, लेकिन बाद अगर हम क्वालिटेटिव, यस Sir, if the company has the expense ratio above 1, so what does that mean? Benefit or loss? अब जैसे आप रेशियो का, मुझे पता ये फार्मूला नहीं है। रेशियो अगर आपने डिफाइन किया है इनकम डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर, सही है। तो Yes, वन अगर वन, तो उस सूरत में क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर देते हैं, सही है। तो अगर 1 से ज्यादा है तो उसके माने क्या हो जाएगा कि आपका इनकम ज्यादा है, सही है। और अगर 1 से कम है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, समझ रहे। अब मुझे इसका डेफिनेशन ही दिया हुआ कि इंजन जो निकालते हैं ना फॉर्मूला दिया हुआ, तो मैं उससे वैसे का भी इन दोनों का रेशियो होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का, समझे। टाइप ऑफ फंड जो होता है वो भी क्वालिटेटिव डेटा होता है। जी जी, क्वालिटेटिव। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि इसको भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, समझ, लेकिन वो होगा। और जो सर मॉर्निंग स्टार रैंक है, जो रैंक है उसमें भी तो 3 4 ये भी तो न्यूमेरिकल डेटा है। नहीं समझे, नहीं है तो आपने कोई नंबर असाइन कर दिया, लेकिन ये एक तरह के रैंक को बता रहा है ना ये, तो इसको हम क्वालिटेटिव डेटा ही कहेंगे, समझे। बल्कि इसको हम बताएंगे आपको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं, सही है। अब आइए लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा में क्या क्या 3 चीजें होती है, एलिमेंट्स, वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशंस। देखिए एलिमेंट्स क्या था, आपके पास 25 कंपनीज का डेटा है। फर्स्ट कंपनी के लिए जो डेटा है वो फर्स्ट रो में दिया हुआ है, सही है। तो उसको कहते हैं एलिमेंट्स आर एंटिटीज ऑन विच डेटा आर कलेक्टेड। तो फर्स्ट रोज रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ फर्स्ट कंपनी, सेकंड रोज रिप्रेजेंट डेटा ऑफ सेकंड कंपनी। तो ये जो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमारे पास टेबल नंबर 1.1 में देयर आर 25 एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो नंबर ऑफ रोज को हम क्या कहते हैं डेटा में, एलिमेंट्स कहते हैं। इज इट क्लियर? एलिमेंट्स आपको बता रहा है कि फर्स्ट रो में दे आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट कंपनी, फिर सेकंड रोज रिप्रेजेंट द मेजरमेंट्स ऑफ सेकंड कंपनी। तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स आर एंटिटीज ऑन विच डेटा आर कलेक्टेड। आपने कंपनी 1 के लिए डेटा कलेक्ट किया, कंपनी 2 के लिए सेकंड रो में है, कंपनी 3 के लिए थर्ड रो में है। देयर आर 25 रोज, तो देयर आर 25 एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सही है। तो एलिमेंट एक चीज होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल्स क्या है ये समझिए। जैसे आपने देखा कि ये जो सेकंड कॉलम से ये जो आपके पास ये जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन था, टेबल नंबर एक मिनट,
वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एलिमेंट्स। जैसे हमने देखा था ना कि फर्स्ट कंपनी के हमारे पास 5 मेजरमेंट थी। पहले क्या था आपके पास, कंपनी की टाइप, फिर इसके बाद एसेट्स वैल्यू, फिर आपके पास इस तरह से आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। तो वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास जो टेबल नंबर में पीछे, तो ये जो है ना सेकंड कॉलम वन कैरेक्टरिस्टिक है, तो दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज सेकंड वेरिएबल, थर्ड कॉलम इज सेकंड वेरिएबल, एंड दिस इज थर्ड वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल एंड 5 वेरिएबल। हर जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये अलग अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ये आई जो है फर्स्ट कंपनी की वन वेरिएबल है 14.37, तो दिस इज द नेट एसेट वेरिएबल। तो ये इसको हम जो है वेरिएबल्स कहते हैं, सही है। ये देयर आर 5 वेरिएबल्स फॉर ईच 25 एलिमेंट। एलिमेंट भी बता दें इसमें। एलिमेंट तो समझ लिए ये फर्स्ट रो है ना, जैसे फर्स्ट रो जो है किसके, फर्स्ट कंपनी के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे? तो इसको फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे। जैसे आप यूं समझ लीजिए, आप जो है आपने पढ़ा होगा ना रोज एंड कॉलम, सही है, मैट्रिक्स बनाते हैं तो रोज और कॉलम होता है ना। तो इसी तरह से जब कोई एक्सेल की शीट खोलते हैं आप, तो नंबर ऑफ रोज जो होता है ना उसको हम एलिमेंट कह देते हैं। नंबर ऑफ कॉलम में पहले जो आप आसानी के लिए फर्स्ट कॉलम को तो जैसे आपने रख दिया कंपनी के नाम, इसके बाद ये जो सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको हम वेरिएबल्स कहेंगे, सही। देयर आर 5 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर 5 वेरिएबल्स हैं, और ये जो पहला जो कॉलम है ये कंपनी का नाम है। तो ये जो पहला फर्स्ट रो जो है ना, ये एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट रो, इसका ताल्लुक फर्स्ट रो का ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट कंपनी के ताल्लुक से है। इस तरह सेकंड रोज में जो जितने भी आपके पास ये जो डेटा जमा है उसका सेकंड कंपनी से ताल्लुक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो एलिमेंट्स के माने ये है जी। सर क्या हम मेजरमेंट्स को वेरिएबल कह सकते हैं? जी, मेजरमेंट्स को वेरिएबल कह सकते हैं हम लोग? मेजरमेंट के जरिए, सॉरी सेइंग दैट मेजरमेंट्स को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, मेजरमेंट्स, आपके नॉइज बहुत आ रही है। तो एनीवे ये क्लियर हो गया ना कि आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं हर कंपनी के लिए। तो ये दिस इज फर्स्ट एलिमेंट। सर हमारे पास कोई भी टेबल गिवन होगा तो उसमें हर जो रो होगा वो हमारे पास एलिमेंट होगा, और जो कॉलम होगा वो हमारे पास वेरिएबल होगा। नहीं, देखें, जब आप डेटा लिखते हैं ना, ये तो मेजरमेंट है, सेकंड से लास्ट कॉलम तक तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो रियल डेटा है। लेकिन ये फर्स्ट रो है, किसी एक कंपनी के लिए आपने लिखा है ना, समझ रहे? तो वो एलिमेंट कहलाया जाएगा, समझ रहे? तो इसके हर कंपनी के 5 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल फंड टाइप, दूसरा वेरिएबल नेट एसेट, तीसरा वेरिएबल 5 ईयर एवरेज रिटर्न्स, चौथा वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो, पांचवा वेरिएबल रैंक, समझ रहे? और वो ये जो 5, ये असल डेटा तो ये है। ये जो रीडिंग आई ना आई 14.37, ये फर्स्ट कंपनी के सेकंड जो रोज हैं, इसमें जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, नहीं है? ये 5 मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सेकंड कंपनी के लिए है, तो सेकंड एलिमेंट के लिए है, सही है? तो नंबर ऑफ रोज जो है समझने एलिमेंट को जाहिर करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो आमतौर से, ये मैट्रिक्स असल में आपके पास बना है, सही है? सेकंड से ये मैट्रिक्स है, सेकंड से 6 कॉलम तक ये मैट्रिक्स है। बाकी ये हर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंपनी के लिए सेकंड, इस तरह से हम ये कहते हैं। क्लियर? तो जी सर, ये कोर्स आउटलाइन है कि हमने कोर्स पढ़ना शुरू कर दिया है? ये फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर जरा डिस्क्रिप्टिव है, कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया ना, एलिमेंट क्या। असल में जो पढ़ाई शुरू होगी चैप्टर 2 से स्टार्ट हो गया, सही है? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो हमने एक सबसे पहले देखा एलिमेंट्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द एलिमेंट्स। जैसे हर वेरिएबल्स के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एलिमेंट्स के 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो 5 वेरिएबल्स हमें यहाँ मौजूद हैं।
तो और वो हर वेरिएबल के जो ऑब्जर्वेशन जो मेजरमेंट होती है उसको हम क्या कह देते हैं, ऑब्जर्वेशंस कह देते हैं। सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑब्टेन फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर देखें टोटल ऑब्जर्वेशन जो है कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। देखिए 25 एलिमेंट्स हैं और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो टोटल आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 15। स्क्रीन पर आप जो भी दिखा रहे हैं ना वो हमारे पास आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें, जूम इन ना करें, जूम आउट करें, यानी कि उसको मिनिमाइज करें थोड़ा। ये नहीं आ रहा है? नहीं, हमारे पास आधा आ रहा है सामने, पूरा नहीं आ रहा है। सर मेरे पास आ रहा है। मेरे पास भी आप अपना जरा जूम किया होगा। सर सही आ रहा है बिल्कुल। आप सही कर लें, आपके पास इंटरनेट सर बिल्कुल। सर उनका मोबाइल शायद वो Sir, it's 11:20 and we have another class as well. ओके, तो चलिए आज मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। तो अब ये है कि फ्यूचर के बारे में सर लास्ट टाइम रिपीट कर दें, डेफिनेशन वाइड कर दें। Something important issue regarding physical class in the देखिए मैं अभी हालात को देख रहा हूँ, वो मैं जरा आईबी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता हूँ फिर, लेकिन वो बुलाना वो तो है, वो फ्लेक्सिबल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि वहीं पे जाकर लूँ। हाँ, तो अभी मैं कुछ समझ जी सर, आप कोशिश करेंगे क्लास फिजिकल हो जाए। लेकिन ये Yes, sir. Sir, physical classes are more productive and active बिल्कुल actually. मैं समझ सकता हूँ कि सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस बोले। सर जो टेबल हमने भी डिस्कस किया पूरा, तो उसमें जो कंपनीज के नेम है सारे एलिमेंट्स होंगे, और जो उनकी 5 डिफरेंट हमने चीजें पढ़ी हैं वो वेरिएबल्स हैं, और जो सारे ओवरऑल जो कॉलम है दैट इज द ऑब्जर्वेशंस। एम आई राइट? जी जी, ऑब्जर्वेशन तो हर कैरेक्टरिस्टिक ईच कंपनी हैज 5 ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हैं? यस सर। तो मेजरमेंट का ऑब्जर्वेशन आप कह देते हैं, जो भी आपने किसी वेरिएबल की जो मेजरमेंट की है वो दैट इज द ऑब्जर्वेशन। ईच कंपनी हैज 5। सही है? ओके यस सर, आई हैव गॉट इट। सर कैन आई लीव द क्लास? यस ओके सर आप रिकॉर्डेड अभी लेक्चर लीव ना करें, मैं जरा अटेंडेंस ले लेता हूँ। यस सर। Sir, have you heard these slides in LMS? चले मैं ओके, मैं एलएमएस पे लगा दूंगा अटेंडेंस आज के, तो चले सबको दे देता हूँ। अभी 78 के करीब स्टूडेंट आए, मैंने देख लिया। सही ओके थैंक यू। ये सब एलिमेंट अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़ सर। एलएमएस पे मैंने ये लेक्चर भी आप लोग बात सुनिए, आप लोग मैंने एक ग्रुप बनाया है, तो मेरे मोबाइल तो वो उस पे आप लोग ये ग्रुप में भी शामिल हो जाए। मैं एलएमएस पे भी मैंने वैसे तो डाउनलोड कर दिया, मैं अनाउंसमेंट में कर दूंगा इसका। ये हमें आपकी क्लास लिंक और एलएमएस पे वो बुक्स की अपडेट भी नहीं आई थी। नहीं मैंने सर अपनी क्लास की लिंक दे दें। मैं दे दूंगा सर। हमें तो मैं आपकी क्लास के यानी कि कोड वगैरह भी नहीं आया, मैं तो फ्रेंड्स में फॉरवर्ड। सर ये तो किसी दूसरे बार से हमने लिंक ले लिया जूम के लिए। नहीं वो आप जाइए ईआरपी के जो लोग हैं ना उनको जाके बताएं। बाज लोगों का उन्होंने एंट्री नहीं किया एलएमएस पे, ये मैं नहीं कर सकता, समझ रहे? वो आप सर आपने रिसोर्सेज अपलोड कर दिए हैं एलएमएस पे? जी एक तो ये अनाउंसमेंट आपने पढ़ी थी ना आपने, तो वहाँ पर एक होता है आउटलुक में जाइएगा, आउटलुक में देखिएगा मैंने चैप्टर 1 बुक भी अपलोड कर दिया, लेकिन मैं हो सकता है मैं अनाउंसमेंट में जाकर इसको कर दूंगा। बुक में जो टेक्स्ट बुक्स बताई थी, हम सिर्फ टेक्स्ट बुक बाय करें या रेफरेंस बुक्स भी बाय करें? नहीं बस टेक्स्ट बुक काफी है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे हम? ये मैं अभी आप किताब खोल के आपको बता दूंगा। चैप्टर असल में ये चैप्टर 1 तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, चैप्टर 2 से फॉर्मली स्टार्ट होगा। तो अभी मैं कॉल नहीं कर सकता कितने चैप्टर, मैं एक दिन चैनल में डिस्कस कर लूंगा कौन कौन से बुक खोल के ना आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर। सही है? I have a question. Yes. Sir, ये स्लाइड्स एलएमएस अपलोडेड है? मैं बता रहा हूँ कि आप अपने एलएमएस पे जाएंगे तो आप तो आउटलुक में देखें तो मैंने सिलेबस में मैंने कॉपी की है। सही है? वरना मैं अभी अनाउंसमेंट में दोबारा क्लासेस वाले इशू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस। जी मैं अभी बात करता हूँ कि आज असल में क्योंकि आपको पता है कि हमें असल में मेन कैंपस में भी जाना, तो मेन कैंपस में आज मैं थोड़ा सा एहतियात किया मैंने के बाद, क्योंकि हमें पहले मेन कैंपस जाना होता है फिर वहाँ से वहाँ जाना होता है। समझे? सर आई एम फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो जो स्टार्ट्स वगैरह तो ऑनलाइन का बिल्कुल भी सर सही तरीके से समझ नहीं आ रही। नहीं मैं तो कहता रहा हूँ कि मैं भी अभी आज तो आपको पता है एकदम क्राइसिस पैदा हो गया था ना,
अभी कुछ जी आज सर। तक कुछ पता नहीं था क्या होगा, समझ रहे हैं? तो जी सर। सर आई एम फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप कुछ बुक्स रेफर करेंगे यानी कि बेसिक्स पढ़ने के लिए? बिकॉज मैंने पहले नहीं पढ़ी स्टैट्स वगैरह। ये दिस इज द इंट्रोडक्टरी बुक्स है ना, ये बिल्कुल ही स्टैट्स की सबसे आसान तरीन किताब है। ठीक है सर। वैसे तो वॉलपुल की भी बुक भी है, वॉलपुल की जो किताब है वो भी आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी वॉलपुल की किताब की, सही। ओके सर। वो इंजीनियरिंग के लिए लिखा गया ये रिकॉर्ड भी जी रिकॉर्ड करूंगा मैं बिल्कुल। ओके सर। सर आप ये लेक्चर अपलोड करेंगे आज LMS पर? LMS पे मैं लिंक भेज दूंगा आपको, ये इसको कंप्लीट करके, सही है? इसी लेक्चर की ना? जी जी। अपलोड कर दे, आप लेक्चर अपलोड कर दे। अभी तो फौरन तो नहीं होगा ना, उसको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है? सही है, ओके। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। फिजिकल क्लास अरेंज कर सकते हैं सर? सिर्फ में कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं कहता हूँ फिजिकल क्लास इंशाल्लाह अगले हफ्ते से, देखिए मैं जो स्टूडेंट चाहेंगे वहाँ ले लें कुछ, तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ मैनेजमेंट से, उसके बाद मैं खुद तो जाऊँगा। सर कुछ टीचर फिजिकल क्लासेस भी ले रहे हैं, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर अगले हफ्ते से मैं